بھائیوں کی سلامتی ہو. ابھی تھوڑی دیر پہلے میرے بھائی نے دعا کی. آمین. تھینک یو بیٹا, خداوند برکت دے. ابھی میں ریکویسٹ کروں گا کہ سارے تھوڑی دیر کے لیے اپنے مائک کو پلیز بند کر لیں تاکہ ہم سب ایزی ہو کے خدا کے کلام کو سن سکیں. اور میں اکثر کہتا ہوں کہ کلام کا یہ جو کلام سننا اور سنانا ہے یہ انتہائی اہم حصہ ہے. تو اس کے ساتھ ہم سب کی بھلائی جڑی ہوئی ہے. اور میں اکثر یہ حوالہ کوٹ کرتا ہوں ایوب کی کتاب میں سے کہ اس سے ملا رہے تو سلامت رہے گا اور اس سے تیرا بھلا ہوگا. وقت آ گیا ہے کہ ابھی میری بہنوں کی بھلائی, میرے بھائیوں کی بھلائی, میرے ہم خدمت بھائیوں کی بھلائی ہو. سو ایک دعا تھوڑی دیر پہلے بھائی نے کی تھی, بڑی خوبصورت دعا تھی. وقت میں ہمارے گھروں میں سے مشکلوں کو, پریشانیوں کو, دکھوں کو, تکلیفوں کو اور بیماریوں کو, قرضوں کو نکالے. اور میں متفق ہوں اس دعا کے ساتھ کہ واقعی میں کہ ایسا ہونا چاہیے, کیونکہ ہم جس غیور اور زندہ خدا کی عبادت کرتے ہیں وہ شہنشاہ ہے, ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے. اور وہ کسی ایک قوم, کسی ایک فرقے خدا نہیں ہے, بلکہ دانیل کی کتاب میں سے حی القیوم کا کیا ہے, رب العالمین کہا گیا ہے, سب قوموں کا خدا, سب مملکتوں کا. اور ایک لمحہ جبکہ کو شاید یہ لگا کہ یہ ساری مملکت جو ہے اور اس کی ساری شان و شوکت جو ہے وہ شاید اس کے ہاتھوں کی کاریگری ہے. خدا نے اس کو شرمندہ کیا, اس کی عقل کو اس کے اندر سے نکال لیا اور دکھانا یہ چاہتا ہے کہ یہ سب کچھ جو کچھ اس دنیا میں ہے یہ سب کچھ اس کا ہے. اور میرے لیے اور آپ کے لیے جو پریویلیج ہے, جو استحقاق ہے, یہ جو خوبصورتی ہے, وہ بائبل کے خدا کے ساتھ اس طرح جڑی ہوئی ہے کہ جو کچھ ہمارے باپ کا ہے وہ سب کچھ ہمارا ہے. اور میں خدا کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہم ایک ایسے خالق خدا کی عبادت کرتے ہیں جو اسرائیل کا قدوس خدا ہے, جو شاندار خدا ہے. اور جب کبھی بھی اس کے پاس آتے ہیں تو اس بات کو یاد رکھا کریں کہ تازگی کے دن کنفرم ہے, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے, یہ کنفرم ہے, یہ ہمیں ملنے ہی ملنے ہیں. لیکن اس کے لیے جو شرط اس نے رکھ دی ہے ہم تھوڑا اس پر غور کر لیں. اعمال کی کتاب اس کے 3 باب کی 17ویں آیت میں لکھا ہے توبہ کرو اور رجوع لاؤ. تو پھر کیا ہوگا کہ خداوند ہمارے گناہوں کو معاف کرے گا اور ہمارے لیے تازگی کے دن لے کر آئے گا. ہم تازگی کے دن بھی چاہتے ہیں کہ ہماری مشکلیں, پریشانیاں, دکھ, تکلیفیں, بیماریاں یہ سب بھی چلی جائیں, لیکن ہم رجوع نہیں کرتے ہیں. سو آج میرے لیے اور آپ کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ ہم اس خدا کے ساتھ جڑے رہیں. یہ جو سب جو چیزیں ہیں نا جن کے لیے ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں, یہ بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ پہلے تم اس کی راست بازی کی اور اس کی بادشاہی کی تلاش تو کر کے دیکھو, یہ سب چیزیں تمہیں ویسے ہی مل جائیں گی. اور میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ جسمانی شفا سے بڑھ کر ہے کہ ہم روحانی طور پر ہیل ہو جائیں اور دکھاوا ہم میں نہ ہو. میں یہاں سے ہی ابھی جیسے آوازیں سنتا ہوں آپ سب کی, تو کبھی کوئی نام لے لیا جاتا ہے تو میں اسی سے یاد کر لیتا ہوں کہ یہاں پر ایک حمید بھائی ہیں اور یہاں پر ایک تابش بھائی ہیں, بھائی عدنان ہیں جن کو میں جانتا ہوں, بھائی فرمان ہے, بیٹی سحر کا نام لیا جاتا ہے یہاں پر جب کبھی گیت گانے کی باری آتی ہے, سسٹر شگفتہ ہیں, اور بھی کتنی بہنیں ہیں جن کے نام میں نہیں جانتا اور میں شاید آپ کو کبھی دیکھ نہ پاؤں, لیکن یہ میرا ایمان ہے کہ اگر ہم اس کے ساتھ جڑے رہیں گے تو یہ ہماری ملاقات یہاں تک واٹس ایپ تک محدود نہیں ہے. ہم ضرور ایک دن ایک دوسرے کو خدا کی بادشاہی میں روبرو دیکھ سکیں گے. سو میں ہمیشہ اس بات کے لیے آپ کو انکریج کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو گروپ ہے یہ صرف وہ زبانی کلامی یا وہ کوئی فارمیلٹی نہیں ہے, یہ بڑا سیریس گروپ ہے اور اس گروپ میں ہم ایک دوسرے کے لیے برکت چاہتے ہیں, ہم ایک دوسرے کے لیے شفایت کرتے ہیں. میں خود راتوں کو اٹھ کے اس گروپ کے لیے دعا کرتا ہوں کیونکہ مجھے پتا ہے کہ میری اور آپ کی جو سلامتی ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. یہ ایک ایسا اگاپے لو ہے جس کے بغیر ہم ثابت قدم رہ نہیں سکتے ہیں. سو میرے عزیز بہن اور بھائیوں, آئیے ہم خدا کے کلام کے حصے کی طرف چلیں اور
आज उल्लेख करना चाहता हूँ वो तिमोथियस के खात्मे से है, दूसरा तिमोथियस है, और चंद एक बातें मैं करूंगा, और मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि मेरे लिए नहीं, सिर्फ खुदा के कलाम के एहतराम के लिए चंद लम्हे आप खुदा के कलाम के साथ जुड़ जाएं। मुझे पता है कि मेरे टाइम की लिमिट क्या है, मैं एग्जैक्ट इसको कोशिश करूंगा कि मेरे टाइम के हिसाब से मैं इसको 6 बजे खत्म कर दूं, और आने वाले 18 मिनटों में, तो आप प्लीज चंद मिनटों के लिए खुदा के खादम और खुदा के कलाम के साथ जुड़ जाएं। खुदावंद आपको आज बरकत देना चाहता है। अखीर जमाने के ताल्लुक से बाइबल मुकद्दस में एक बड़ा खूबसूरत हवाला लिखा हुआ है, और वो दूसरे तिमोथियस उसके 3 बाब में बैठा हुआ है, और ये हवाला ये है, मैं पढ़ता हूं इसको। यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन ये जान रख कि अखीर जमाना में बुरे दिन आएंगे। गौर से सुनिए, ये प्रोफेसी हो रही है, ये प्रोफेटिक कलाम है कि अखीर जमाना में बुरे दिन आएंगे, और जिन दिनों में से मैं और आप गुजर रहे हैं, मुझे 2 महीने पहले इत्तेफाक हुआ, बल्कि इत्तेफाक नहीं बल्कि मौका मिला कि मैं पाकिस्तान विजिट कर सकूं, और मैंने जब विजिट किया तो मैंने देखा है कि वहां पर तो पैसों की वैल्यू में अभी कोई वैल्यू ही नहीं रह गई है, उसकी तो कोई कदर और कोई हैसियत ही नहीं है। आप बस बाजार में जाएं तो जाते ही वापस आएंगे तो आपकी जेब खाली हो जाएगी, इस कदर महंगाई पाकिस्तान में हो गई है। बिल्स बहुत ज्यादा आते हैं, बच्चों की फीसें बढ़ गई हैं, और अखराजात, घरों के किराए हैं, और जो लोग तो अपने घर में रहते हैं, मैं समझता हूँ वो तो बड़े बादशाह लोग हैं, लेकिन वो भी बेचारे बिलों से तंग हैं। लेकिन ये जो बुरे दिन अभी हम देख रहे हैं, ये बेसिकली वो ये इसका ताल्लुक अखीर जमाना के साथ है, और ये बात एग्जैक्ट खुदा के कलाम के मुताबिक है कि इस बात को हम इस तरह देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है, क्योंकि आदमी खुद गर्ज हो गए हैं, वो पहले वाली मोहब्बत नहीं रही। और एक दिन मैं कलाम सुनाता सुनाता पूछ रहा था कि क्या आप जानते हैं कि हमारी आपसी मोहब्बत में भी फर्क क्यों पड़ गया है? तो बड़े लोगों ने जवाब दिया कि आपस में पहले जैसी मोहब्बत नहीं रही, और हम अपने बारे में सोचते हैं, दूसरों के बारे में नहीं सोचते। तो फिर दिल में फौरन ख्याल आ रहा था कि हम कभी कभी तो ना ये भी ऐसी चीजें भी हम शैतान पर डाल देते हैं कि शैतान करा रहा है जो करवा रहा है। और उसके बाद जितने मुझे जवाब मिले वो सब यही थे कि ये शैतान की वजह से हो रहा है, आपस में मोहब्बत नहीं है, ये शैतान ने किया जो कुछ किया है। तो बहुत दफा ऐसा होता है कि हम अपने काम भी, अपनी बातें भी शैतान पर डाल देते हैं, जबकि बाइबल ये कहती है कि बेदीनी के बढ़ जाने की वजह से मोहब्बत ठंडी पड़ जाएगी। आज मैं और आप खुद गरज इसलिए हो गए हैं क्योंकि ये बेदीनी के जमाने में से हम गुजर रहे हैं। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, आगे चल के आप देखेंगे कि यहाँ पर सिर्फ खुद गर्ज की बात नहीं हो रही है, जार दोस्त की बात नहीं होती है, यहाँ पर शेखी बाज की बात नहीं हो रही है। आगे लिखा हुआ है, मगरूर, बदगो, माँ बाप के नाफरमान, ना शुक्र, नापाक, तबई मोहब्बत से खाली, संग दिल, तोहमत लगाने वाले, बेइज्जत, तुंद मजाज, नेकी के दुश्मन, दगाबाज, ढीठ, घमंड करने वाले, खुदा की निस्बत ऐशो इशरत को ज्यादा दोस्त रखने वाले होंगे। अच्छा, यहाँ तक तो ये सारी बातें जो लिखी हुई है ना, इनको अगर आप टिप्स पे गिनना शुरू कर देंगे तो ये 15 से ऊपर चली जाती हैं। लेकिन जो चीज अब मैं आपको बताना चाह रहा हूं वो शायद मेरे लिए और आपके लिए एक धचका होगा, और स्पेशली ऐसे लोगों के लिए जो खिदमत कर रहे हैं, क्योंकि आगे लिखा हुआ है कि ये दुनियादार लोगों के बारे में बात नहीं हो रही है, ये ऐसे लोगों के बारे में बात नहीं हो रही है जो चर्च नहीं जाते हैं, ये ऐसे लोगों के बारे में बात नहीं हो रही है कि जो खिदमत में मसरूफ अमल नहीं है, बल्कि अगली आयत को पढ़ेंगे तो आपको धचका लगेगा। वहां पर लिखा हुआ है, वो दीनदारी की वजह तो रखेंगे मगर उसके असर को कबूल न करेंगे, ऐसों से भी किनारा कर। यानी इसका मतलब है कि अंदर कुछ है और बाहर कुछ है। दिखा वो ये रहे हैं कि हम रूहानी हैं, वो दीनदारी की वजह रखेंगे, यानी कहने से मुराद है हाथों में बाइबल होएगी और जुबान पर गीत होंगे, और बाइबल का जो
एक्चुअल असर है वो उनके अंदर नहीं होगा। यहाँ पर कोई दुनियादार लोगों की बात नहीं हो रही। आज मैं अपने इस ग्रुप के साथ बात करना चाहता हूँ, खादमों के साथ बात करना चाहता हूँ, अपने समेत। मैं अपने आप को बाहर नहीं निकाल रहा, अपने समेत सारे बहन भाइयों को यहाँ पर रखना चाहता हूँ। ना सिर्फ खादमों को बल्कि बहनों को, भाइयों को। हम सब जो हालेलुया कहते हैं, हम सब जो एक दूसरे की मोहब्बत के दम भरते हैं, हम जो मसीही मोहब्बत के दावे करते हैं, हम जो बताते हैं कि हमसे ज्यादा कोई आपकी फिक्र ही नहीं करता है, हम रातों आपके लिए उठ के दुआएं करते हैं। मेरे अजीज बहन और भाइयों, क्या हम कलाम मुकद्दस का असर अपने अंदर रखते हैं या हम जाहिरी तौर पर सिर्फ दिखावे की इबादत करते हैं? पंजाबी जिन्हों कहने कि सिर्फ गोंगलुआ तो मिट्टी झाड़ने आ। मेरे अजीज बहन और भाइयों, ये बाइबल का फॉर्मेट नहीं है। खुदा ने मुझे और आपको किस लिए लाया है? आप यकीन करें, सादा से लफ्जों में बाइबल हमें सिखाती है। थोड़ा सा ऊपर चले जाएं, तीसरे बाब में से निकलकर अगर आप दूसरे में रिवर्स की तरफ आए तो आपको पता चलेगा 22वीं आयत में लिखा हुआ है, जवानी की ख्वाहिशों से भाग, और जो पाक दिल के साथ खुदावन से दुआ करते हैं और उनके साथ रास्तबाजी और ईमान और मोहब्बत और सुलह का तालब हो। ये वो बातें हैं जो मैंने और आपने करनी है। अब इन चीजों की जो ऑपोजिट बातें हैं जिनके लिए खुदा ने मुझे और आपको कॉल किया है, हमने ऐसे होना है। लिखा है, लेकिन बेवकूफी और नादानी की हुज्जतों से किनारा कर, क्योंकि तू जानता है कि उनसे झगड़े पैदा होते हैं और मुनासिब नहीं कि खुदावन झगड़ा करे, क्योंकि सब के साथ नरमी और तालीम देने के लायक और बुर्दबाद हो और मुखालफों को हलीमी से तादीब करे। शायद खुदा उन्हें तौबा की तौफीक बख्शे ताकि वो हक को पहचाने। मेरे अजीज बहन और भाइयों, थोड़ा सा भी हमें कलाम का जब पता चल जाता है ना, हमें थोड़ी सी ही भेद की बातें पता चल जाती हैं ना, तो हमारा जो 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 रूहानी मेयार है वो इस कदर आसमान से बातें करता है कि हम समझते हैं कि अब इसे कुछ पता नहीं है और हमें सारी बाइबल का पता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जितने बाइबल के उस्ताद बनते हैं यकीनन मार खाएंगे। तालिब इल्म बन के रहें, हलीमी के साथ वक्त को गुजारें, सादगी के साथ वक्त को गुजारें। अगर आपको बाइबल के बारे में नॉलेज भी है तो बराए मेहरबानी बाइबल कहती है कि बड़ी हलीमी से और तरदीब करके नरम मजाजी से हमने तालीम देनी है। यहाँ पर जिसको थोड़ा सा भी कलाम का पता चल जाता है वो समझता है कि आई एम समथिंग, मैं कुछ हूँ, लेकिन खुदा ने मुझे और आपको इस काम के लिए नहीं बुलाया है। मैं कहता हूँ कि आपका मुकाशफा, आपका रेवलेशन, आपका इल्म, मैं ये नहीं कहता, बाइबल वाज़ेह करती है कि ये अच्छी बात नहीं है कि रूह इल्म से खाली रहे, पर इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि अगर खुदा ने हमें थोड़ा सा कुछ दे दिया है तो हम दूसरों को हकीर जाने और इस तरह की बातें करें कि जैसे कि आपको सब कुछ पता है और दूसरे को कुछ भी नहीं पता। मेरे अजीज बहन और भाइयों, मैंने और आपने इस वक्त को गनीमत जानना है और बड़े ही ढंग से खुदावंद की इबादत करनी है। मुझे यहाँ पर लगता है जब कभी जवानी की आजमाइशों के बारे में तो हम बात करते हैं तो मैं खुद फील करता हूँ कि जब मेरे पास से कोई गाड़ी तेजी के साथ लेके गुजरता है तो मेरे अंदर भी थोड़ा सा वो जज्बा आना शुरू होता है, ऐ हुंदा कौन है जरा मैनू काट के चला गया, और फिर मैं कोशिश करता हूँ कि मैं भी अगले इशारे में इसको काट दूं। तो मेरा मतलब है कि अगर हम बाइक पर हों, गाड़ी पर हों, तो दिल में यही होता है कि बस ये आगे निकला क्यों है। मेरे अजीज बहन और भाइयों, एक वक्त है हर चीज का, लेकिन बाइबल हमें ये सिखाती है कि हमें वक्त के साथ क्या करना है, तब्दील होना है। हमारे यकीन माने कि रूह कुदस का जो हमारी जिंदगी में ज़हूर है वो फायदा पहुंचाने के लिए है, किसी का नुकसान करने के लिए नहीं है कि हम इस जुबान के साथ ऐसा बोलें कि दूसरे को चीर के रख दें। ऐसे इस काम के लिए खुदा ने हमें नहीं बुलाया है। खुदा ने मुझे और आपको बुलाया है कि हम नरम जुबान से बात करें और किसी के लिए बरकत का बायस बने। मुझे आपके मुकाशफों पर कोई इतराज नहीं है, मुझे इस बात पर बिल्कुल इतराज नहीं है कि आपको बहुत सारे बेतों का पता है, होना भी चाहिए,
बुरी बात नहीं है, लेकिन बाइबल कहती है कि अगर हमारा खुदा करीनी और शास्त्री का खुदा है और वो चाहता है कि हर चीज तरतीब से हो, तो फिर मैं और आप इतना उछल क्यों रहे हैं? मैं और आप इतना घमंड किस बात पर कर रहे हैं? बाइबल कहती है कि जो घमंडी है उसका मुकाबला खुदा खुद करता है। सो मेरे चीज बहन और भाइयों, अखीर जमाना के ताल्लुक से यहाँ पर बहुत सारी बातें लिखी गई हैं, लेकिन मेरे दिल में एक बड़ा बोझ था कि मैं आज आपसे बात करता। उसके ताल्लुक से लूका की इंजील में एक वाकया है और वाकया मुझे बड़ा अच्छा लगता है। वो चूंकि उसका ताल्लुक मेरी ख्वाब के साथ था और मैं शेयर करना चाहता था कि 2 दिन पहले ऐसा हुआ कि मैं रात को 2 बजे उठा और मुझे एक चीज बार बार नजर आ रही थी, और वो ये थी कि एक हौलनाक आग को मैं देख रहा हूँ। और चंद साल ऐसा कुछ पहले ऐसा हुआ कि हमारे खानदान में एक नौजवान की डेथ हुई, और वो नौजवान रोजाना मेरी ख्वाब में आकर मुझे कहा करता था कि दोज़ख जो है वो इंतहाई हौलनाक जगह है, दोज़ख जो है वो इंतहाई हौलनाक जगह है, वहां पर आग ही आग है। और मैं जब उसको जब सुना करता था तो ये आवाज मुझे परेशान किया करती थी। उस अजीज का चेहरा मुझे बार बार दिखाई दिया करता था, और मैं कि क्यों मैं इसको तौबा नहीं करवा सका, क्यों मैं इस तक पहुंच नहीं सका। मैं कहता हूँ कि अभी तो व्हाट्सएप ने अभी तो फासले कम कर दिए हैं, अभी तो ज़ूम ने फासले कम कर दिए हैं। हमें मल्टीमीडिया और ये जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, इसने तो सब काम ही आसान कर दिए हैं, लेकिन फिर भी इसके बावजूद अगर हम किसी को बचा नहीं रहे तो फिर मैं समझता हूँ कि हमारी खिदमत का कोई फायदा नहीं है। मैं बहुत रोया करता था इस बात को लेकर के, और चंद दिन पहले जब फिर मैंने इस चीज को देखा तो मुझे ये बाइबल में से बात याद आई कि खुदावंद के कलाम में लिखा हुआ है, उसके 20वें बाब 19वें बाब के आखिर में है, शायद 20वें बाब के स्टार्ट में है, वहां पर लिखा हुआ है कि जो आग की झील है ये दूसरी मौत है। तो मेरे अजीज बहन और भाइयों, खुदावंद के कलाम में लिखा हुआ है कि मुबारक और मुकद्दस वो लोग हैं जो पहली क़यामत में शरीक हों। सो मैं और आप पहली क़यामत में शरीक होने के लिए बुलाए गए हैं। हमें ऐसे लोगों को जो आपको लगता है कि वो एक कंफर्ट जोन में नहीं है, हमें लगता है कि वो आग में है, बाइबल हमें क्या सिखाती है कि हमें उन्हें आग में से झपट कर निकालने की जरूरत है। बोझ रखें इस बात का, तकलीफ हो आपको ऐसे बहन भाइयों के बारे में, ना कि हम किसी के लिए ठोकर का बायस बने। मैं कहता हूं कि मुझे बड़ी खुशी होगी इस बात के लिए कि हम खुदा की ज़ुरी में जब हाजिर हों तो हम फख्र से कह सकें कि ये बेटी सहर मेरा ताज है, ये भाई दनान मेरा ताज है, ये जो भाई ताबश है ये मेरी खिदमत का फल है। मैं कहता हूँ ऐसे अगर हमारा तारुफ वहां पर हो तो मैं कहता हूँ ये तो एक रिवॉर्ड की बात है, और इसी रिवॉर्ड के लिए खुदा ने मुझे और आपको कॉल किया है। हमें अपनी बुलाहट पर नजर करनी है, हमें अपने बुलावे पर गौर करना है। मेरे अजीज बहन और भाइयों, खुदा हमसे बहुत प्यार करता है। और मैं जब कभी उस लूका की इंजील उसके 16वें बाब में जो वाक़या दर्ज है गरीब शख्स का और लाजर का, तो भले ही मेरे पास अभी इतना टाइम नहीं कि मैं उसको खोलूं, लेकिन मैं एक आयत से आज इसको खोलना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि आप उसको क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग आंखों वाले हैं। मैं ऐसे लोगों से बात कर रहा हूं जो खुदा के कलाम को जानते हैं। अगर मैं उनसे कोई 60% को 70% बात भी कर जाऊंगा तो बाकी का 30 वो खुद ही समझ जाएंगे, और खुदा का रूह है जो हमें समझाने वाला है। तो मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं कि आखिर वजह क्या थी और वो क्या ऐसा प्रॉब्लम था जिसकी वजह से वो दोज़ख में था और वो बाप इब्राहिम की गोद में था। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सिर्फ एक आयत मैं खुदा के कलाम में से आपके सामने पढ़ूंगा। ये अमसाल की किताब में से है, और मैं आपके सामने ये हवाला पढ़ूंगा। खुदावंद के कलाम में लिखा हुआ है, अमसाल की किताब को अगर आप खोल कर देखें तो आपको पता चलेगा उसके 22वें बाब की 9वीं आयत को। यहाँ पर लिखा हुआ है, जो नेक नजर है बरकत पाएगा, क्योंकि वो अपनी रोटी में से मस्कीनों को देता है। गौर से सुने खुदावंद का कलाम क्या कहता है। बाइबल कहती है जो नेक नजर है बरकत पाएगा, क्योंकि वो अपनी रोटी में से मस्कीनों को देता है। लाजर उसके पास था, वो मस्कीन था, और वो उसका अपनी रोटी में से रोटी नहीं देता था। वजह ये थी,
وجہ یہ تھی کیونکہ اس کی نظر ہی نیک نہیں تھی۔ آج بہت سارے بہن بھائی آپ کو ایسے مل جائیں گے جو جن کے پاس دیکھنے والی تو آنکھیں ہوں گی، لیکن اصل آنکھیں جو بائبل کہتی ہے، نیک نظر والی آنکھیں شاید ان کے پاس نہیں ہے۔ اور اس زمانہ میں، اس اخیر زمانہ میں جو میں نے آپ کو چیلنج دیا ہے تموتھیوس کے خاتمے سے، اخیر زمانہ کے تعلق سے، یہاں پر آپ کو اسی لیے وہ اثر نظر نہیں آ رہا کیونکہ ہمارے پاس وہ آنکھیں ہی نہیں ہیں، وہ نیک نظر ہی نہیں ہے جو ہم لوگوں کو پراپر طریقے سے جسے دیکھ سکیں۔ اگر میرے اور باپ کے پاس نیک نظر ہے تو پھر روٹی ضروری نہیں ہے کہ ہم شیئر کریں۔ بائبل کہتی ہے کہ خدا کا کلام روٹی ہے، ہم کلام کو اگر شیئر کرنا شروع کر دیں گے، اس آیت کو آپ جسمانی روٹی کے ساتھ جوڑنے کی بجائے اگر آپ اس کو روحانی روٹی کے ساتھ جوڑ دیں گے تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ میں نے کیسے ایسے لوگوں کے پاس پہنچنا ہے۔ تو اس کے لیے سب سے ضروری جو چیز ہے وہ جو اس امیر شخص کے لیے نہیں، اس کے پاس نہیں تھی، وہ میرے اور آپ کے پاس ہے، اور وہ ہے نیک نظر۔ اگر میرے اور آپ کے پاس نیک نظر ہے تو ہمیں نظر آ جائے گا کہ کس جگہ ہم نے اس کلام کو جا کے بانٹنا ہے۔ اور یاد رکھیے گا کہ بائبل مقدس میں واضح لکھا ہوا ہے کہ چونکہ اس کی نظر ٹھیک نہیں تھی تو پھر بائبل کہتی ہے کہ اس کی آنکھ، وہاں پر لکھا ہوا ہے اس کی آنکھ کہاں پہ کھلی ہے؟ ایک ایسی جگہ پہ کھلی ہے جہاں پر اس کو ایک قطرہ پانی کے لیے ترسنا پڑ رہا ہے۔ میرے عزیز بہن اور بھائیوں، اگر ہم آنکھ کا استعمال درست نہیں کریں گے، ہمارے پاس اگر نیک نظر نہیں ہے تو اس اخیر زمانہ میں ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اور چونکہ میں بیسیکلی اس حوالے کے ساتھ تو اس کو اس لیے نہیں ملا نہیں پا رہا کیونکہ میرے پاس یہ میسج نہیں تھا، میں تو اسی پر بات کرنا چاہ رہا تھا، لیکن چونکہ وہ مجھے رات کو خواب آیا تو میں نے کہا چلو میں آپ کے ساتھ اس حوالے کو شیئر کروں۔ تو خداوند آپ سب کو اس کلام کے وسیلہ سے کثرت سے برکت دے، اور ایک چھوٹی سی بات دے کر آج اپنے آپ بستروں پر جائیں کہ خداوند آپ کو ایک ایسی نظر دے جو واقعی ہی دیکھنے والی ہو۔ خداوند ہمیں گھمنڈ سے بچائے کیونکہ اونچی آنکھوں سے اس کو نفرت ہے۔ خداوند ہمیں ایسے سیٹ اپ سے بچائے جس میں کہ ہم دینداری کی وضاحت تو رکھتے ہیں لیکن ہمارے اندر وہ اثر نہیں ہے۔ شاید میری اور آپ کی باتیں بہت عقل مندوں والی ہوں اور ہمارے پاس بہت مکاشفے، بہت علم، بہت بحث ہو، لیکن مجھے اور آپ کو خدا نے اس کے لیے بلایا نہیں ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم کیا کریں کہ جو روٹی آپ کو مل گئی ہے اس کو ہم مسکینوں کے ساتھ، اب مسکین کون ہے؟ آپ کو بڑے لوگ ملیں گے۔ ایک دن بھائی فرمان مجھے کہتے ہیں کہ ایک دفعہ وہ کسی ایریے میں گئے ہیں تو بتاتے ہیں کہ بھائی نعیم مجھے تو وہاں پر ایسے لوگ نظر آئے ہیں جن کو بیسک چیزیں نہیں پتا تھی بائبل کے بارے میں۔ اور میں آپ کو سچ کہتا ہوں آج بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو بنیادی باتیں نہیں پتا خدا کے کلام کے بارے میں۔ او کتھی ہو تسی سارے بیٹھے ہوئے، اکھاں نو کھولو، نیک نظر نو یوز کرو جڑی خداوند نے تانوں دے دیتی ہے۔ ان آنکھوں سے کیا کریں؟ لوگوں کو دیکھنا شروع کر دیں۔ اس زمانہ میں جتنی یہاں پر وہ غلط باتیں لکھی ہیں کہ وہ ڈھیٹ ہوں گے، گھمنڈی ہوں گے، اور وہ سر دوست ہوں گے اور اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھیں گے، یہ ان چیزوں میں سے نکل کر ہمیں کہاں پر جانے کی ضرورت ہے؟ دوسرے باب میں۔ ہمیں تموتھیوس کے تیسرے باب میں نہیں رہنا ہے، ہمیں تموتھیوس کے دوسرے باب میں جانا ہے۔ اور دوسرا باب ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ دوسرا باب ہمیں کلیئر کرتا ہے کہ ہمارا مزاج کیسا ہونا چاہیے۔ ہمیں ان آزمائشوں سے نکلنا ہے اور ہمیں بھرپور طریقے سے خداوند کی خدمت کرنی ہے۔ خدا نے ہمیں بلایا ہے کہ ہم کیا کریں؟ ہم ان نادانی کی حجتوں سے کنارہ کریں۔ یقین مانے ہم بہت دفعہ، مجھے دکھ ہوتا ہے، یہ جتنے گروپس ہیں سب میرے پاس ہیں، میں سب گروپوں میں ایڈ ہوں۔ میں جب گروپوں میں ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کو وہ چھیڑ خانی کرتے ہوئے سنتا ہوں تو میرا دل دکھتا ہے کہ یار کیا خدا نے مجھے اور آپ کو اس کے لیے بلایا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ ٹاؤنٹ کریں؟ میرے پاس اگر مکاشفہ ہے، میرے پاس اگر بید ہے تو میں یہ بات تحمل کے ساتھ بھی کر سکتا ہوں۔ ضروری نہیں ہے کہ میں اس کو ایک ایسا سٹیکر بھیجوں جس سے کہ وہ ناراض ہو جائے۔ میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، خداوند مجھے بلاتا ہے تاکہ میں کیا کروں؟ نرم مزاجی سے تعلیم دینے کے لائق اور بردباری کے ساتھ جواب دینے کے لائق ہوں۔ میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، خدا نے ہمیں اسی لیے بلایا ہے۔
खुदावंद आप सबको ये तौफीक दे कि आपको ये बात समझ लग जाए और फिर आप क्या करें कि आपके दिल में ये बोझ आ जाए कि खुदा करे कि अगर इसकी आंखें नहीं खुल रही हैं तो कोई सी बात नहीं है, मेरा काम है इसको बताना, खुदा वक्त पर इसको गाइड करेगा। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब मैंने खुदा उनको कबूल किया तो मैं चूंकि एक क्रिश्चियन फैमिली से नहीं था, तो मेरे साथ होता ये था कि मुझे एक ऐसा दोस्त मिल गया, वो मुझे कहा करता था को बाइबल को पढ़ा कर, तो मैं कहता था मुझे तो समझ नहीं आती बाइबल की। वो कहा करता था फिर भी पढ़, और लोग मुझे ताने दिया करते थे कि यार तू तो बाइबल को अनपढ़ों की तरह पढ़ता है। तो मैं आपको आज बताना चाहता हूँ कि वो अनपढ़ों वाली बाइबल पढ़ी हुई आज मेरे 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 काम आती है। वजह पता है क्या है? क्योंकि ये कलाम है। बाइबल कहती है कि कभी बेतसीर वापस नहीं आता है। ये जब कानों के जरिए, आंखों के जरिए आपके अंदर जाएगा तो आपकी तारीकी को 100% गारंटी है कि ये बाहर निकाल देगा। आज आपको समझ नहीं लग रही है, परवाह ना करें, एक वक्त आएगा कि खुदा आपको सिखाएगा, खुदा आपको समझाएगा। और मैं एक छोटी सी मिसाल के साथ इसको प्रूफ भी करना चाहता हूँ कि खुदावंद के कलाम में, अमसाल की किताब में लिखा हुआ है कि जब कोई किसी पराई की लड़ाई में पड़ता है तो ऐसा ही है जैसे कुत्ते को कान से पकड़ता है। तो आज आपको अगर बात की समझ नहीं ना आ रही है तो कोई ऐसी बात नहीं है, किसी दिन, साल बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद किसी की लड़ाई में जब आप पढ़ेंगे ना, और आपको जब पढ़ेंगी तो आपको ये बात याद जरूर आएगी कि ये तो खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि हमें गैर की लड़ाई में नहीं पढ़ना। सो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि जिनका असर बाद में होता है। तो ये है कि खुदावंद के कलाम को पढ़ते रहे, ये कलाम कानों के जरिए। मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि मेरे माँ बाप अनपढ़ थे, दोनों ने कभी स्कूल का मुंह नहीं देखा था। तो जब मुझे खुदावंद के कलाम की पहचान हुई तो मैं क्या किया करता था, मैं रोजाना लाउडली, ऊंची आवाज में अपने घर में बाइबल मुकद्दस की तलावत किया करता था। मुझे पता था कि ये यही कलाम जिसे मैं ऊंची आवाज में पढ़ता हूँ, ये कानों के रास्ते मेरे माँ बाप की जिंदगी में जा रहा है, उनके अंदर जा रहा है, और ये उनके अंदर की तारीकी को खत्म होगा। और अगर आप यहाँ पर आप में से अगर कोई भाई इरफान को जानता है तो वो मेरी मामा यहाँ पर इंग्लैंड में मेरे साथ ही, तो उनको पता है कि मेरी वालदा की जिंदगी कैसी रही है। वो एक रास्तबाज खतून थी, सिर्फ सुनने के वसीला से उसने खुदा के कलाम से बरकत पा ली। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि खुदा के कलाम के साथ जुड़ जाएं। इस अखीर जमाना के हिसाब से ये चीजें हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए। हमने रास्तबाजी के असर को, कलाम के असर को अपने अंदर रखना है। वजह की खुदावंद को जरूरत नहीं है, खुदावंद को लिबादा ओढ़े हुए क्रिश्चियन लोगों की जरूरत नहीं है। खुदावंद को ऐसे लोगों की जरूरत है जो दर हकीकत में खुदा के कलाम के साथ जुड़े हुए हैं। आप सब मेरे लिए बहुत अजीज, बहुत प्यारे और बहुत ही एहतराम के लायक है, इसलिए क्योंकि मैं जानता हूँ कि एक दिन मैं आपको खुदा की बादशाही में देखूंगा और हम मिलेंगे वहां पर। तो मेरा ये ईमान है कि आने वाले वक्त में भी हम इसी तरह खुदा के कलाम को सीखते रहें, और अगर तो खुदावंद की मर्जी हुई तो हम जरूर मिलेंगे, और अगर खुदावंद की मर्जी है कि हम उसकी बादशाही में मिले और वो जल्द आ जाए तो फिर हमारी मुलाकात वहां पर होगी। खुदावंद यीशु मसीह मेरी बहनों को, मेरी बेटियों को, मेरे भाइयों को, और स्पेशली मेरे हम खिदमत भाइयों को जो खुदा के कलाम को पढ़ते हैं, उसकी तालीम देते हैं, खुदावंद आप सबको कसरत से बरकत दे। आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपको बरकत दे। खुदावंद आप थैंक यू। भाई नाम भी रहे, खुदावंद का पाक आपकी हिफाजत करेगा।